Hello friends, welcome to Knowledge Galaxy to rediscover the basics with Mayank Tiwari, a premier coaching and training channel dedicated to metallurgy studies and consultancy, established to cater the needs of students, degree, diploma and AM/IIM metallurgy, competitive and recruitment exams for GATE, SAIL and various other government and private sector companies, metallurgical industries and whosoever seeking knowledge and information about various subjects and topics of metallurgy, operational process optimization, productivity improvement analysis, concepts like 5S, total productive maintenance, TPM, quality circle, QC, root cause analysis, RCA, ISO systems, QMS, EMS and OSHAs, practical and effective communication English, written and spoken. This is the foundation stone of forming this channel. To impart practical industrial knowledge as per your specific requirements via tailor-made training sessions for your colleagues, employees and students, please contact me on knowledgegalaxy26@gmail.com or WhatsApp me on +91 99 071 for scheduling and organizing the sessions at your place or via video conferencing. My dear friends, you might have heard that training is costly, but not to train is still costlier. So do get your employees, colleagues and students trained on the relevant topics so that they perform well on their duty and subsequently contribute positively to the growth of your company and organization in a better way. So do contact me as soon as possible for organizing the sessions and get them trained. Dear friends, another important aspect of Knowledge Galaxy is that specialized subject-wise coaching classes are available for Diploma Engineering, Metallurgy and Mechanical, IIM, Indian Institute of Metals, Part 2 or Section B, and competitive and recruitment exams for GATE, SAIL and various other government and private sector companies. Metallurgical industries, here complete syllabus coverage will be offered for the students aspiring to appear in the forthcoming semester exams, that is December or June. So please contact me on knowledgegalaxy26@gmail.com or WhatsApp me on +91 99 071 101 for scheduling and organizing the classes via video conferencing. My dear friends, now the technology has improved so much that actual physical distance doesn't matter anymore. You can get your doubts clarified and clear all your doubts and gain knowledge by sitting at your home or office or wherever you are comfortable with. So use the technology and get your doubts cleared. Do contact me as soon as possible. My dear friends, I have made so many videos which are available in my YouTube channel. So do visit my channel repeatedly and regularly and do watch all the videos available there from start to finish, as gaining less knowledge or having half knowledge is more dangerous than having no knowledge. So for the benefit of you all, please do watch all the videos from start to finish. Here I am very much thankful to all my subscribers who believe in me and like my content. So I again request all the persons to do subscribe my channel, like my videos and also share with your friends so that others can also gain knowledge about the topic. So currently I am going to discuss about in this video about, इस वीडियो में मैं आपके लिए ला रहा हूँ प्रोसेस फ्लो चार्ट ऑफ फेरोमैग्नीज और सिल्कोमैग्नीज प्रोडक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि
फेरोमैग्नीज और सिलिकोमैग्नीज का प्रोसेस फ्लो चार्ट कैसा होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे स्टेप्स से गुजरकर फेरोमैग्नीज और सिलिकोमैग्नीज प्रोड्यूस किया जाता है। तो आप सभी की डिमांड पर मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रोसेस फ्लो चार्ट ऑफ फेरोमैग्नीज एंड सिलिकोमैग्नीज प्रोडक्शन। तो चलिए ये प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ होने वाली है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से पूरे ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मुख्य रॉ मटेरियल्स हैं फेरोमैग्नीज और सिलिकोमैग्नीज प्रोडक्शन के, वो देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है मैग्नीज ओर, जो कि डिफरेंट ग्रेड्स के होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से आप ले सकते हैं। फिर आता है कोक एंड कोल, जो कि रिडक्टेंट के रूप में यूज होता है। फिर आयरन ओर और मिल स्केल्स, क्वार्ट्जाइट, डोलोमाइट, ये दोनों जो है फ्लक्स के रूप में काम करते हैं। क्वार्ट्जाइट जो है सिलिकोमैग्नीज में सिलिकॉन कंटेंट का सप्लायर है, और डोलोमाइट जो है फ्लक्स के रूप में यूज होता है। और हाई एमिनो स्लैग, ये हाई कार्बन फेरोमैग्नीज प्रोडक्शन में मैग्नीज ओर के सब्स्टिट्यूट के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिसका बहुत सारा बेनिफिट है। ये बेनिफिट मैं ऑलरेडी अपने एक सेपरेट वीडियो में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ मैग्नीज बेस अलॉयज है उसमें मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जिसका लिंक वीडियो में अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये सारे मुख्य रॉ मटेरियल्स हैं फेरोमैग्नीज और सिलिकोमैग्नीज प्रोडक्शन के। ये सारे चीज़ें आते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, और इन सब को हैंडल किया जाता है रॉ मटेरियल्स हैंडलिंग सेक्शन में, जिन्हें वहाँ पर प्रॉपरली स्टैक किया जाता है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ में। फिर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई आता है फ्रॉम कैप्टिव पावर प्लांट और गवर्नमेंट और अदर सोर्सेज से, जो कि सप्लाई किया जाता है डायरेक्टली टू सबमर्ज्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, जिसमें स्मेल्टिंग ऑपरेशन होता है। तो रॉ मटेरियल्स जो रॉ मटेरियल हैंडलिंग सेक्शन में किया जाता है, वहाँ से फिर रॉ मटेरियल्स का चार्ज प्रिपरेशन एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेलेबल अलॉयज स्पेसिफिकेशन किया जाता है। और फिर उसके बाद रॉ मटेरियल्स को चार्जिंग इनटू फर्नेस आया ऑटो बैचिंग सिस्टम, स्कीप, टेल्फर एंड कन्वेयर बेल्ट्स के द्वारा फर्नेस में चार्ज किया जाता है, जिसमें से स्मेल्टिंग ऑपरेशन शुरू होती है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के साथ। जैसे ही फर्नेस में स्मेल्टिंग ऑपरेशन शुरू होता है, तो वहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस जो कि डस्ट के साथ भरी होती हैं, जनरेट होती हैं बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, जिन्हें गैस क्लीनिंग प्लांट्स में डालकर क्लीन किया जाता है और डस्ट फ्री क्लीन गैस को इन्वायरमेंट में छोड़ा जाता है। और साथ ही जो स्लरी और वेट डस्ट बनता है उसे थिकनर में भेजकर स्लरी के रूप में भेजा जाता है, और उसके बाद थिकनर से होते हुए उसे डंप यार्ड में भेजा जाता है प्रॉपर सेफ उसका डिस्पोजल करने के लिए। स्मेल्टिंग ऑफ सबमर्ज्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जब स्मेल्टिंग होती है, तो उसके बाद इंटरमिटेंट टैपिंग बेस्ड ऑन पावर कंजम्पशन लिया जाता है। फेरोमैग्नीज और सिलिकोमैग्नीज के स्पेसिफिक पावर के आधार पर पावर कंजम्पशन की रीडिंग्स नोट करते हैं कंट्रोल रूम में, और जब स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन के बेस्ड में और जितना लिक्विड मेटल एंड स्लैग हैंडल कर सकते हैं वहाँ लिक्विड मेटल एंड स्लैग हैंडलिंग सेक्शन में, तो फिर उसके आधार पर इंटरमीडिएट टैपिंग ली जाती है। इस टैपिंग से हमें मुख्यतः 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। सबसे पहले लिक्विड मेटल, जिसको कास्ट आयरन मोल्ड्स में या सैंड बेड में कास्टिंग किया जाता है। फिर इसका सैंपल कलेक्शन किया जाता है, जिसका क्वालिटी चेक किया जाता है। क्वालिटी एनालिसिस के बाद में इसे मेटल केक्स और को शिफ्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट्स यार्ड्स में, जहां उनका सेमी मैकेनाइज्ड एंड मैनुअल साइजिंग, शॉर्टिंग एंड स्क्रीनिंग किया जाता है। फिर उसके बाद में फिर से जो पूरा टोटल साइज रेंज होता है 0 to 150 mm साइज का, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के आधार पर कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उसका फिर से सैंपल कलेक्शन किया जाता है क्वालिटी चेक करने के लिए। फिर फाइनली उसे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार पैकिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं और डिस्पैच करते हैं।
पैकिंग और वेमेंट जो है वो 50 kg बैग्स में करते हैं या 1 टन के जंबो बैग में करते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कस्टमर का रिक्वायरमेंट पे, उसे कैसा चाहिए उसके आधार पर पैकिंग वेमेंट एंड डिस्पैच करते हैं। सेकेंड पार्ट जो हमको स्मेल्टिंग से प्राप्त होता है वो होता है लिक्विड स्लैग। उसकी भी पैन या सैंड बेड में कास्टिंग करते हैं और उसका भी सैंपल कलेक्शन करते हैं और क्वालिटी चेक करते हैं, ये जानने के लिए कि उसमें क्या कंटेंट्स हैं। फिर लिक्विड स्लैग को भी सॉलिडिफाई होने के बाद में शिफ्ट किया जाता है स्लैग यार्ड्स में, जहां पर उसका क्रशिंग किया जाता है। फिर क्रशिंग करने के बाद में उसको स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीन करने से 2 फ्रैक्शन होते हैं, जिसमें से पहला फ्रैक्शन होता है +3 mm साइज़ का, जिसे हम रिसाइकल करते हैं फेरोमैंगनीज प्रोडक्शन के लिए। ये फेरोमैंगनीज स्लैग के बारे में बात हो रही है। सिल्कोमैंगनीज स्लैग को डायरेक्ट डिस्पैच करते हैं या डंप करते हैं, फेरोमैंगनीज स्लैग को भी डिस्पैच करते हैं सो दैट उसको फेरोमैंगनीज प्रोडक्शन में वापस रिसाइकल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो -3 mm फ्रैक्शन होता है उसे डायरेक्टली डंप यार्ड्स में डंप कर देते हैं। नॉर्मली सिल्कोमैंगनीज का जो स्लैग होता है उसका कोई इकोनॉमिकल यूसेज नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ डंप यार्ड्स में जाता है। और फेरोमैंगनीज का स्लैग जो -3 mm होता है वो भी उसमें से कोई मेटालिक कंटेंट इकोनॉमिकली रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उसे भी डंप यार्ड्स में डंप कर देते हैं। एक और फ्रैक्शन हमें जो स्मेल्टिंग के दौरान इंटरमीडिएट टैपिंग से प्राप्त होता है वो है लाउंडर एंड स्कल्स। ये लाउंडर एंड स्कल्स नॉर्मली जो रनर्स और लाउंडर में जो मेटल और स्लैग सॉलिडिफाई होता है वो होता है। तो इसका भी किस तरीके से हैंडल करते हैं ये देखते हैं। इसके लिए मैनुअल शॉर्टिंग करते हैं। मैनुअल शॉर्टिंग से हमें मिलता है सबसे पहले मेटल डायरेक्टली उसे हम सेमी मैग्नाइज्ड या मैनुअल साइजिंग शॉर्टिंग के लिए भेज देते हैं और उसके बाद वो फिर सैंपल कलेक्शन एंड क्वालिटी चेक फॉलो होते हुए पैकिंग वेमेंट एंड डिस्पैच हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हमको पोर्शन मिलता है मिक्सचर का। मिक्सचर जो होता है वो मेटल और स्लैग का मिक्सचर होता है जो कि केमिकली बॉन्डेड होता है या फिजिकली बॉन्डेड होता है। उसके आधार पे उसको फिर से जिगिंग के लिए नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए भेजते हैं जो कि जिगिंग होता है। जिगिंग से हमें फिर से मेटल और स्लैग प्राप्त होता है। जिगिंग बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंस पे काम करता है। मेटल हैवी होता है इसलिए वो नीचे बैठ जाता है और स्लैग लाइट होता है इस कारण से वो ऊपर रहता है, जिसे स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंस से सेपरेट कर लिया जाता है। ये मेटल जो प्राप्त होता है उसे फिर से सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर क्वालिटी चेक करके पैकिंग एंड वेमेंट डिस्पैच कर देते हैं। इसके बाद जो तीसरा चीज़ हमें प्राप्त होता है मैनुअल शॉर्टिंग से वो है स्लैग। इसे सीधा रिसाइकल कर देते हैं फेरोमैंगनीज स्लैग का फेरोमैंगनीज प्रोडक्शन के लिए और सिल्कोमैंगनीज स्लैग का डिस्पैच कर देते हैं या डंप यार्ड्स में डंप कर देते हैं। जिगिंग से हमके जो दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो है स्लैग। इसका भी सेम प्रोसेस करते हैं, आइदर फेरोमैंगनीज स्लैग है तो उसे रिसाइकल कर देते हैं और सिल्कोमैंगनीज स्लैग को डंप कर देते हैं। जो सेमी मैकेनाइज्ड और मैनुअल साइजिंग शॉर्टिंग एंड स्क्रीनिंग से जो -10 mm का साइजिंग का मटेरियल हमें प्राप्त होता है उसे जिगिंग में भेजते हैं और वो फिर से ये रूट फॉलो करता है मेटल और स्लैग का। मेरे दोस्तों तो ये है सारा का सारा स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स फॉर फेरोमैंगनीज एंड सिल्कोमैंगनीज प्रोडक्शन। पूरा का पूरा फ्लो चार्ट, सारी एक्टिविटीज़ मैंने इसमें कवर की हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। इसे आप पॉज करके पुनः बार बार देख सकते हैं। सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और कन्फ्यूज़न पूरा क्लियर कर लीजिए। और मैं आप लोगों से चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को जो कुछ भी डाउट है वो मुझे आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ हमेशा आप लोगों की डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आपको अधिक से अधिक करेक्ट और एक्यूरेट नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों की जो स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप ज्ञान चाहते हैं, अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कह सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो आपका डाउट मैं क्लियर करूँ, आपका जो क्वेरी है उसमें क्लैरिफाई करूँ, आपको जो एक्यूरेट नॉलेज है वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ।
So with this, I hope you like the content and found the video worth. So please don't forget to like, share and subscribe the channel. I once again request all of you to repeatedly and regularly visit my channel. Watch all the videos available there from start to finish, and also remember to press the bell icon so that you can get the notification of the new videos promptly. My dear friends, here I am once again very much thankful to all my subscribers, all the persons, and especially to you all for watching this video. Once again, I request you to do subscribe my channel and do visit my channel repeatedly and regularly. Do watch all the videos available there from start to finish so that you can gain maximum knowledge about the topic. So with this, I am taking my voice to rest. See you in the next video very soon. Thank you very much for watching this video. Thank you.